Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल भीमसेन हूँ। मैं आर्मी में था 30 इयर्स। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अपनी कंपनी का नाम रखा डॉक्टर भीमसेन फैमिली डेंटल क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरी 2 क्लिनिक्स हैं, एक DLF फेज़ 1 में है, एक सोना रोड पर है। The partition was a very painful sight. I was about 9 years old that time. Even before that, I was staying in Firozpur. We used to hear so many things about the partition, and at times, listening to them, it used to create a little feeling of hatred also. The trains used to come laden with the injured dead bodies or something like that, and were detained over there. Now, as a social service from the RSS, we all children were usually with RSS because they always organized the things better, and they always gave importance to the children also. So we used to follow our senior RSS people and guidance, and during that period when when the train loads of people who are injured were brought, they were hungry. We used to take food from our houses, collect over there and feed those people. It used to be a very touching sight for us that somebody is bleeding but still you are trying to feed him, put him in a better place. So that was a very painful experience, and I have seen the houses being burnt over there, and every night we used to keep a watch on our house that somebody comes and puts fire on our house. Now the partition took place from our town. All the Mohammedans were being evacuated to Pakistan. Opposite my house, there was a Mohammedan house, and there were 3 girls who were my sister's class fellows and all these things. Now, we had a lot of sympathy with them. My elder brothers, they escorted these girls up to the border and left them because we found they are all like our sisters. So, man-to-man relationship was very good. It is only the difference was created by the politicians, which made people hated each other. So this is about the partition. And after that, Mahatma Gandhi was assassinated in 1948 January or so. After that, the Congress government thought that it is the doing of the Jansangh people, RSS people. Since we all children were in RSS Shakha Go, so the police caught us, kept us for a day or 2 in the police station and left us and told us not to follow that whatever it is. So that time we used to get our national feelings that, and we realized the value of our freedom, so that we should stick to it and we should feel proud of it, that we have got freedom by so much difficulties and all these things. And sometimes before the partition, from my village, the people used to come go in the jalous or rallies, and they used to be caught. And we used to hear after that Natha Singh has been caught by the police and he has been sent to Kalapani, that is Andaman Nicobar. So all these things were in our mind. What is Kala Pani and all these things,
where Chacha has been sent. Well, in a village, you always address somebody Chacha, Taya, or something like that, because it is a very cohesive society. So these are the things which I saw during partition and before partition. After partition, the thing became stabilized. Well, but one thing I still want to say, before partition, the town's cleanliness and all used to be much better. After that partition, it became a very bad trend. We could not manage our things very well. Health department, vaccination and all used to be a regular feature before partition. There used to be a health center. Anytime we go, they would give the smallpox vaccination to us. But after the partition, after 2-3 years of partition, everything finished. We did not pay any attention to this thing, and that used to be very painful to us. That before we came, 2 years before, we were well looked after, because there was the British government. There was a system of working, but our system got absolutely destroyed after the partition, because whatever it is, we were more towards for ourselves than for the community. स्कूल मैंने जाना शुरू किया 1942 में. मैं 38 में बॉर्न हुआ, 1938 में बॉर्न हुआ था. 1942 में स्कूल जाना शुरू किया. कच्ची जमात उनको बोलते थे. मेरे को 1 पैसा पॉकेट मनी मिला करता था. मेरे स्कूल का नाम था आर्या स्कूल, और उसी स्कूल में मेरा बड़ा भाई भी पढ़ा करता था. मैं उसके साथ जाता था और वो मुझे ले आते थे. उसके बाद वो हायर स्कूल में चले गए. मैं प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता रहा, और प्राइमरी के बाद हाई स्कूल में गया. कॉलेज मैंने उसी शहर फिरोज़पुर से ही RSD कॉलेज फिरोज़पुर में अपनी शिक्षा पाई. इंटरमीडिएट पास किया मेडिकल ग्रुप में, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर में दाखला मिला. मैंने वहाँ से BDS पास की 1960 में. 1 साल मैंने पंजाब गवर्नमेंट की सर्विस भी की, और फिर मैंने आर्मी में मुझे सिलेक्शन मिल गई, और मैंने आर्मी ज्वाइन की इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन आर्मी डेंटल कोर. और उसी से ही मैं 85 में रिटायर हुआ एज कर्नल भीमसेन. सेना में मैंने जो ऐसी चीज़ें सीखी, अगर मैं सेना ना ज्वाइन करता मैं नहीं सीख सकता था. मैंने पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, और दूसरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने बड़े अफसर से, अपने छोटे जवान से कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो मैं अगर फ़ौज में नहीं जाता मैं वो सीख नहीं सकता था. मेरे दादाजी का नाम मैया मल था, जो कि हमारे गांव हमारा भोलू वाला है, मोगा तहसील में है. वहाँ रहते थे और हमें बहुत अच्छा प्यार देते थे. लेकिन ज़्यादा देर वो ज़िंदा नहीं रहे मेरे पैदा होने के बाद. दादी जी का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन ना ही मैंने उनसे मुलाकात हुई है. मेरे पिताजी का नाम श्री बिंद्राबन था. वो मिडिल क्लास के आदमी थे. बेस हमारा एग्रीकल्चर था. उन्होंने गांव में रहते थे. वो खुद तो बहुत थोड़ा पढ़े थे, लेकिन उनकी मंशा थी कि उनके जितने बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लें और अच्छा सेटल हों. इसलिए वो हमारे गांव से शिफ्ट हो कर के फिरोज़पुर आ गए और वहाँ अपना काम करना शुरू किया और हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया. मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे. वो सुबह 6 बजे अपने काम पर जाते थे और रात को 10-11 बजे तक काम करके आते थे, क्योंकि जब फिरोज़पुर आ गए फिर वो कंट्रैक्टर बन गए थे. कंट्रैक्टर के काम में छोटा मोटा जो भी काम मिलता है वो करते थे. सारा दिन साइकिल पर घूमते थे.
मेरी माता जी का नाम श्रीमती पूरन देवी था। वो बहुत मेहनती थी। हम 5 भाई बहन थे। वो हम सबको सुबह तैयार करती थी, नाश्ता बनाती थी और टिफ़िन भी दे देती थी ताकि हम ठीक से पढ़ सकें, भूखे नहीं रहे। और वो सुबह 3-3:30 बजे उठती थी, सर्दी हो या गर्मी हो, और उठ कर के खाना बनाना सब कुछ। और मेरे घर में बिजली भी नहीं थी, वो लैंप के रोशनी से ही सारा काम करती थी। और उन दिनों बिजली का हीटर नहीं होता था, लकड़ी के जला करके ही वो आग से सारा खाना बनाती थी और हमें तैयार करके स्कूल में टाइम पर भेजती थी। माँ को मैं रोज़ याद करता हूँ और उनकी फ़ोटो मेरे बिस्तर पर है। मेरी 3 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम सुशीला देवी था, उसके बाद सरला देवी था, तीसरी का नाम कांता था। मेरे बड़े भाई का नाम राजेंद्र कृष्ण कुमार था। मेरा नाम भीमसेन है। मेरे पिताजी ने संस्कार दिया है कि बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, और ऐसी कभी नौबत ना आए कि कोई पैसे लेने के लिए तेरा दरवाज़ा खटखटाए। किसी का पैसा रखना नहीं है। रोटी खुद ना खाना, लेकिन किसी का पैसा नहीं रखेंगे। माता जी ने यही बताया कि बेटा खूब पढ़ो, बड़े हो, ताकि मेरे मन को शांति रहे कि तुम बहुत अच्छे अफसर बनोगे। अपने बच्चे को मैं यही सिखाता रहूँ कि बेटा कभी डिसऑनेस्टी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कोशिश करके इज्जत कर लो। और आज भी मैं अपने बच्चे लड़के को कहता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करना पड़े जिससे कोई पैसे लेने वाला तेरे कमरे पे आए कि डॉक्टर साहब पैसे चाहिए। मैं 1985 में फ़ौज से रिटायर हुआ। उसके बाद फ़ौज में मुझे खूब पढ़ाया गया था और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की थी। मैं स्पेशलिस्ट था था। फ़ौज छोड़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। पहले तो अपना जहाँ घर था वहीं एक कमरे में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, करते रहे। उसके बाद मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ। पहले मैं दिल्ली में ही रहा 10 साल। उसके बाद गुड़गांव में शिफ्ट किया। जिस कमरे में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने DLF से परचेज की करके यहाँ पर अकेले प्रैक्टिस शुरू की 1995 में, और इसका नाम रखा डॉक्टर भीमसेन फैमिली डेंटल क्लिनिक। इसके पश्चात मैंने मेहनत खूब करनी पड़ती है प्रैक्टिस में, क्योंकि लोगों को जब तक कि आप में फेथ नहीं हो, मरीज़ नहीं आते हैं। मरीज़ फेथ से आते हैं, एक दूसरे से सुनकर आते हैं कि वो डॉक्टर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया और मैं अपनी प्रैक्टिस में अच्छा सेटल हो गया। इसके बाद मेरा लड़का ने 12th पास किया, मेरी लड़की ने 12th पास किया। उनको मैंने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? वो दोनों बोले कि पापा हम तो डेंटिस्ट ही बनना चाहते हैं। मेरी क्लिनिक की स्पेशलिटी है कि जो भी मरीज़ आए उसको प्रेम से बैठाओ और ऑनेस्टली ट्रीट करो, ताकि जब वो क्लिनिक से बाहर जाए वो सोचे कि मेरा बहुत कुछ किया गया है, मेरी जो दर्द थी उसको ठीक कर दिया गया है, डॉक्टर साहब अच्छे लग गए। मेरी शादी 1972 में हुई जनवरी में, और मेरी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी है, PhD किया हुआ है। उनका नाम प्रवीणा है। पहले नाम प्रवीणा डांडा था, अब वो प्रवीणा भीमसेन के नाम से है। वो लेक्चरार थी कॉलेज में। उसके बाद मेरे से शादी हो गई।
शादी होने के बाद वो मेरे साथ रही। जहाँ पर स्कूल में या कॉलेज में उनको कोई सर्विस मिलती थी पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाती थी। ऐसा नहीं उन्होंने कभी भी सोचा कि मैं पीएचडी हूँ, मैं स्कूल में क्यों पढ़ाऊँगी। लेकिन उस स्कूल में भी पढ़ाया है, कॉलेज में भी पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। और फिर जब हम दिल्ली में आ गए तब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस करने लग गई थी। उसके साथ साथ उन्होंने उनको रेडियो इंग्लिश रेडियो न्यूज़ पढ़ने का भी ऑल इंडिया में मौका मिला। उन्होंने 25 साल इंग्लिश न्यूज़ रीडर का काम किया है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में। मेरी लाइफ में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। वो बहुत मेहनती थी, पैसा खूब बचाती थी, हम एक भी पैसा नहीं खर्च करते थे। उन्होंने पहली औरत देखी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी, जो भी इनके ऑर्नामेंट्स होते हैं, पढ़ाने के लिए बच्चों की एजुकेशन में लगाए, क्योंकि मेरे पास पैसे इतने नहीं थे। इससे ज़्यादा और हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे ऐसा होने नहीं दिया कि मैं अकेला हूँ, अब क्या करूँ। मेरी सोच में भी वो हमेशा दाखिल रही हैं और उनका जितना योगदान है मैं सोचता हूँ किसी और लेडी का नहीं होगा। मेरे साथ है, मेरे अभी पास ही बैठी हुई है। मेरा नाम प्रवीणा है, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल भीमसेन की वाइफ हूँ। इनकी स्पेशलिटी ये है, जैसे इन्होंने खुद बताया भी, कि बहुत मेहनती हैं और ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेहनती हो। और इन्होंने लाइफ में जो चैलेंजेस फेस की हैं, उनको बहुत अच्छी तरह फेस किया, कभी हार नहीं मानी और चैलेंजेस कई प्रकार की फेस की हैं। बहुत मुश्किलें सामने आई हैं लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। और इनसे मैंने भी यही सीखा है कि किस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। और ये बहुत फ्रेंडली भी हैं और सब लोग इनको, जो नहीं भी जानते, हम जैसे सुबह सैर करने जाते हैं, जो नहीं भी जानते इनको गुड मॉर्निंग ज़रूर कहेंगे या नमस्कार ज़रूर कहेंगे और ये सबसे बात करते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं अपने सोशल सर्कल में। इनकी चुनौती यही थी कि इनका जो ये इस्टेब्लिशमेंट है, क्लिनिक है, ये आगे बढ़े। इसीलिए इन्होंने अपने बच्चों को डेंटिस्ट बनाया ताकि इनका नाम, इनकी लेगेसी आगे बढ़े। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा एक लड़की है बड़ी, शी इज़ नाउ अबाउट 52 ईयर्स ओल्ड। मेरी बेटी का नाम वानीश्री है। शी इज़ आल्सो ए डेंटिस्ट। शी हैज़ स्टडीड इन मणिपाल and then she went to study in New York to do her post graduation. मेरा और वो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करती हैं। मेरा लड़का 50 ईयर्स ओल्ड है, उसने भी BDS मणिपाल से किया। उनका नाम वरुण भीमसेन है। और वो फिर मैंने उनको इंग्लैंड भेजा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, क्योंकि मैं भी इंग्लैंड में रहा था अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। उसी कॉलेज में उसको भेजा तो वहाँ से उन्होंने अपनी MSc की डिग्री ली और आकर के मेरे को प्रैक्टिस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मेरे 2 ग्रैंडसन हैं, मेरे लड़के के लड़के। एक का नाम है निशांत भीमसेन, दूसरे का नाम है रोहिन भीमसेन। और मेरी 2 ग्रैंड डॉटर हैं। मेरी बेटी की 2 बेटियां हैं। एक का नाम है आनिया और दूसरी का नाम है तन्वी। मेरी जो ग्रैंड डॉटर हैं, जब यहाँ होती हैं वो बहुत प्यार करती हैं। वो जब छोटी थी तब मुझे दवाई खिलाने के बाद डांस भी करके दिखाती थी, इतनी खुश होती थी। मेरे ग्रैंडसन हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं जब भी मौका मिलता है। Well, he inspired me well enough that I followed his profession, I guess. Other than that, yeah, he's very energetic till this age of 87, 88, and till now also. In fact, he's at work every day, managing things with his Fauji background,
तो रोज़ आते हैं काम पे और थोड़ा बहुत डंडा घुमाना होता ही है, थोड़ी एक दो लोगों को डांट दिया, कुछ कर दिया, so that the system works better. And I joined the practice in '98. Then he told me that it's easy to join a running practice, you should go and start your own practice. So I looked for a place down here in Badshahpur, established the clinic, worked there for 2 hours. It was a good learning curve for me because अकेले handle करना situations को was sometimes difficult. But the one positive thing he always told me, and he still does, and now I tell others who are working with us, is कि डरो मत, तुम करो काम, how wrong it will go, and I am there, don't worry, I will take care of it. So that was a very positive thing, especially when you are youngster and you are starting out and you are a little unconfident. So that was a major boost. I have been in this profession now for more than 30 years and enjoy what I do. I've got a small family, 2 sons and a wife. My wife is a cardiologist. She works with the Government of India, ESIC. And my children are, one of them is giving his class 12 boards and the other one is in class 8 right now. You know, he has been an inspiration to me throughout life, I think. He has always been a very positive thinker as far as I remember throughout. And then finally when he decided to leave the army and we decided to come and settle in Delhi, I still remember it was a big struggle because he had to start his own clinic. He was attached to so many hospitals. I think in a day he used to visit 4 or 5 places just to build up his name. The clinics, that's when he started our clinic, which is still running now. It's almost 35 years. And touch wood, since me and my brother have joined him, we've had a great, great camaraderie between the 3 of us. Other than that, he has always inspired me to do whatever I wanted, pushed me to excel in whatever I wanted, be it my work or my other extra activities. So like I'm a car racer and he's been inspiring me throughout to do whatever I did. Always a positive feedback. He's a very positive person, as I said before, and his interaction with his grandchildren, I think my daughters learn so much from him, just sitting with him and talking to him about everything, about politics, about life. So yes, he's a very, very inspiring person. So what inspires me the most about my grandfather is how hardworking he is. Anytime you will go to the clinic, you will find him sitting there working on something, and I think that's a quality I really want to imbibe in myself. He loves what he does and he never misses a chance not to do it. I've always loved talking to my grandfather whenever I come to his house. He always tells me stories about how his childhood was and how it was like for him in the army. And I always love listening to whatever stories he tells me. Also, some memories that I really admire. When I was younger, I used to play with him and he used to always make me laugh. Then he's always been supportive of whatever decision I want to take. For example, when I went to boarding school, he stood by that decision, and he encouraged me to go forward with it. And when I left boarding school, he did the same. My grandfather, Dr. Bhimsen, is a big source of inspiration in my life. He always teaches me about family values and how to treat people with respect and how just to be a good human, all in all. And he always just teaches me about, where he came from, his humble beginnings, and how his father and mother worked hard to put him in school and college, and how he as an individual always worked hard to be where he is now, and to also educate his children and also provide them with a very good life. My grandfather teaches me to be humble always and don't stress too much about the future, because everything in the universe has been planned for you. He inspires me by teaching me to work hard. He also tells us about some of his stories when he was young, and how about he always had to work hard to get what he wanted. He always teaches us the importance of knowing our history. Like some time back, only a year or 2 back, we went to Udaipur with him, which was really fun. We saw all the lakes and we travelled a lot with him. It was really fun.
उसके लिए मुझे हौसला रखना पड़ता था और कभी कभी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता था, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की शक्ति होती थी, क्योंकि ये होता था कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। इंस्पिरेशन तो मुझे मेरे स्कूल जो टीचर्स थे ना, उनसे मिली। एक उनमें टीचर थे मास्टर भीमसेन, उनका भी नाम भीमसेन था। स्कूल में मुझे पढ़ाते थे और उनका हमेशा यही एम रहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊँ, और वो मुझे शाम को सुबह अपने घर में बुला करके पढ़ाते थे, ताकि जो उनके मन में है वो मैं उनको करके दिखाऊं। मैं सारी दुनिया घूम चुका हूँ, एक्सेप्ट रशिया नहीं गया हूँ। बाकी सब देशों में भेज चुका हूँ। एक दफ़ा मेरी एक पोस्टिंग भी आर्मी में इंडो चाइना में हुई थी। उस वक़्त कम्युनिस्टों के साथ लड़ाई हो रही थी 1968 में। हम आर्मी की तरफ से गए थे। वहाँ पर हमने रिफ्यूजियों के लिए एक इंडो लॉ फ्रेंडशिप हॉस्पिटल बनाया था, जिसमें हम जितने रिफ्यूजी थे उनको ट्रीटमेंट देते थे। और उस वक़्त घमासान युद्ध हुआ था। हम लोकल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन भी देने जाते थे। एक दफ़ा हमने वैक्सीनेशन दिया, वो सारे ही लोग, रात को फीवर हो गया, सारे गांव वालों को फीवर हो गया। तो थोड़ी दूर पर ही दुश्मन था। दुश्मन को पता लग गया कि इस गांव में सब आदमी सो रहे हैं, इनको इंजेक्शन लगा है। रात को उन्होंने अटैक किया, हम भी वहीं थे, और उन्होंने हमें आके जो लोग थे वहाँ पर लोकल, उन सब की राइफलें ले ली, उनको छोड़ दिया। हमको पूछा आप किस लिए आए हो? हमने बोला हम तो वैक्सीनेशन करने के लिए आए हैं, हम इंडिया से हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप इंडिया से हैं, अभी आप हमारे साथ चलो। उन्होंने 2-3 दिन हमको रखा और छोड़ दिया कि आप तो हमने बोला हम डॉक्टर हैं, आपको सेवा चाहिए, सेवा आपकी सेवा कर सकता हूँ। इंडिया में सारे इंडिया में घूमा हूँ मैं। कश्मीर में 11 साल रहा हूँ, सर्विस के दौरान में हर पार्ट में रहा हूँ। फिर साउथ में सिकंदराबाद में रहा हूँ, लखनऊ वगैरह में रहा हूँ, कलकत्ता में रहा हूँ। गाने सुनने का बहुत शौक़ है। सिंगर हम मोहम्मद रफ़ी को भी जानते हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले और गीता दत्त को, उनके गाने सुनने का भी शौक़ है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, रुत मस्तानी है मेरी महबूबा। कई देखी मैंने दीवानत की। एक टैक्सी ड्राइवर थी, वो बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी। देखो, पॉलिटिक्स में मन में चेंज होती रही है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हमें कुछ पता ही नहीं था। फिर इंदिरा गांधी ने काफ़ी देर काम किया, लेकिन अब एनालिसिस करके ये मुझे पता लगा है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ एक ही उनमें कमी है कि वो थोड़ी थोड़ी किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बराबर का कोई इंसान नहीं है। बहुत एफिशिएंट है। इन्होंने बाकी सब देशों से बहुत अच्छा संबंध रखा है, जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स ने नहीं रखा था। ये किसी से भी बात करने में नहीं झिझकते हैं। ये अपनी बात कन्विंस भी करवा लेते हैं, प्रेम से करवा लेते हैं, और इनको हर आदमी जो अब्रॉड है पोजीशन में वो मिलना चाहता है, क्योंकि इनसे भी वो काफ़ी कुछ ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत मन से बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में जाकर ही
भगवान मिलता है। मैं तो यही सोचता हूँ, जब मैं अपना काम करता हूँ पेशेंट्स पे पर, उनको अपनी पूरे तरीके से काम करूँ, वो एक मेरी मेडिटेशन होती है। उस वक़्त मैं कुछ और ना सोचूं, अपने मरीज़ का ही सोचूं, वही मेरी भक्ति है। हार्ड वर्क, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। अगर किस्मत पर डिपेंड करें तो किस्मत हार्ड वर्क से ही बनती है, वैसे नहीं बनती। चांस मिलता है, उसको सीख फ़ायदा उठाना चाहिए जब भी मौका मिले। I was aware of this Rotary's presence since 1961 because my eldest brother was a Rotarian. Now after I left army, retired, then I started organizing a Rotary club initially in Basant Kunj and later on in DLF Kutab Enclave. DLF Kutab Enclave, I started the Rotary Club. I was a chartered president of the club, and later on I was assistant governor Rotary International. During the Rotary Club formation, I formed the main club plus a Rotary Village Corps and a Rotaract Club. Rotary Village Corps is you make the people members who have feelings for help to others and all. Same thing, Rotaract is a initial club which will later on give us good Rotarians. It's a training club. So that is how I got connected. I worked for Rotary for about 10 years. In 1996, the polio vaccination was started in Delhi. After that, Mr. Sudarshan Agarwal and Dr. Harshvardhan discussed with each other, and we used to take, I was in the Rotary thing, so the Rotary International has taken up this issue, and they had supplied the medicines and everything to us, and so we went to each and every house in every village wherever we could and gave the drops of polio vaccine. In 1997, this movement was started in Gurgaon, and we started doing the same thing. During the process, we had to visit all the remote corners of this district, wherever the population was slightly of a different religion. Now, to convince them, it was a hard job. We had to tell them that it is required to avoid, to give you the benefit so that none of the person has a limp or anything like that. Polio is a very dreadful disease. Well, after that I have been off and on working for it, but I am not an active Rotarian now. Me and my wife were also given the award for being the best Rotary couple in Delhi. मैं हर साल अपना जो गुरुद्वारा है वहाँ पर लंगर 2 दफ़ा करता हूँ, और फिर भी जो चैरिटी मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, अपनी श्रद्धा से कुछ देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम ये देंगे, ये इंस्टीट्यूशन चलती रहेंगी, नहीं तो ये बंद भी हो सकती हैं। सो जितना हो सके करना चाहिए। इंडिया के यूथ को यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेहनत करके कमाओ तो वो रोटी अच्छी है, बिना मेहनत किए अगर खाना मिल रहा है वो टेस्टी नहीं होगा आपके लिए। और ख़ास तौर पे आजकल सरकार सबको फ्री राशन दे रही है। मेरे ख्याल में सरकार की ये अच्छी नीति नहीं है। उससे जो जवान है उनको खाना तो मिल रहा है, वो काम नहीं करते हैं। अभी हमें वर्कफोर्स के लिए, क्योंकि काम में मैंने देखा है वही आदमी यहाँ पर काम में हमारे पास टिकता है जिसको काम करके तनख्वाह मिल के उसने आटा ख़रीद के घर लेके जाना है, जिसके घर में बना बनाया
रोटी है वो 4 दिन काम करता है, 5वें दिन नहीं आता, क्योंकि उसको चिंता नहीं है। तो यूथ को मेहनत की आदत पड़नी चाहिए, ये नहीं है कि फ्री राशन मिलता है तो कोई बात नहीं है। Now my message to the youngsters is that take care of your health, because unless you are healthy you will not be able to perform your duties well. And moreover, the healthy mind can think better things. So whatever the advice the elders gave, they giving it the advice after they have experienced certain things. Please do not ignore their advice. Take their advice in a healthy way, and if you do not want to take the advice, you can ask them what is it inside. So my suggestion to you youngsters is, please follow and the advice of the elderly. It has something in it which at the moment as a youngster you do not realize it, but later on when you grow up in age, you will feel that your advice given to you at such and such time would have been much more useful if you had followed it. Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel